All right, I've already shared the solution for this, but let me explain it to you. March 2015 paper. March 2015 paper was yet to be done. Yeah, the sum says 2 point charges 1 nanocoulomb and minus 4 nanocoulomb. What are the charges? Q1 and Q2. One is 1 nanocoulomb, another one is minus 4 nanocoulomb. Yeah, are 1 meter apart in air, are 1 meter apart, distance is 1 meter and they are in air. ठीक है. Find the positions along the line joining the two charges. Find the positions along the line joining the two charges at which resultant potential is 0. Please read the question properly. He has told find the positions, यानी एक position नहीं है, एक से ज़्यादा positions पहचानने हैं. तो basically at least 2 positions should be found. So how will be the figure? Basically you have your Q1 and you have your Q2. One is 1 nanocoulomb, another one is minus 4 nanocoulomb. ठीक है, and the distance between them is 1 meter. ठीक है, 1 meter is the distance. Clear? So that is your figure. First thing, we will be finding a point inside. This is the first part of the sum. He has told find the positions. We are finding the first position which is in between the charges. ठीक है, so let us consider any point to be at a distance x, at a distance x from q1 charge, at a distance x from q1 charge. Then the remaining distance from the second charge will be 1 minus x, because 1 meter is the total distance. So let that point where the potential needs to be 0 be this point. आप नाम दे सकते हो A, B and C. Let C be the point where the distance where the potential is 0 in between the charges. Let it be at a distance x from q1. ठीक है, so distance from q2 will be 1 minus x. ठीक है, then potential formula is V equals 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Q 1 by 4 pi epsilon naught q by r, that is your formula. ठीक है, so at the point where we have considered, say this point C where we have considered net potential must be 0. He has told that in the question itself. Find where the resultant potential is 0. ठीक है, so resultant potential is 0 मतलब V1 plus V2 is equal to 0. Yeah, V1 plus V2 is equal to 0. What is V1? Potential due to the first charge, that will be 1 by 4 pi epsilon naught. Q is 1 nanocoulomb. ठीक है, 1 nano divided by distance is x, 1 nano divided by x. ठीक है, 1 nano लिख सकते हो या फिर 1 multiplied by 10 to the power minus 9 plus second potential is 1 by 4 pi epsilon naught. Q is minus 4 nano, so this plus becomes minus now. ठीक है, plus becomes minus 4 into 10 power minus 9 by 1 minus x is equal to 0. I hope it is clear. 1 by 4 pi epsilon naught 1 into 10 power minus 9 by x plus minus 1 by 4 pi epsilon naught 4 into 10 power minus 9 by 1 minus x is equal to 0. After this what happens is you will shift one of them to the other side. You will get 1 by 4 pi epsilon naught 1 into 10 power 9 10 power minus 9 by x is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 4 into 10 power minus 9 by 1 minus x. So this and this gets cancelled, nano and nano gets cancelled. What remains? 4 into x, 4x equals 1 minus x into 1, that is 1 minus x. ठीक है, 1 minus x. So minus x comes this side, it becomes 5x is equal to 1, x is equal to 1 by 5, that is 0.2 meter. From where is this? From 1 nanocoulomb, because from the figure we have taken x as from first charge, that is 1 nanocoulomb. So पहला point जहाँ पर potential 0 है वो है 0.2 meters from the first charge, 0.2 meters from the first charge. ये हो गया point in between. ठीक है, this was the first case where one of the position which is in between the charges. ठीक है, तो इसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे मैंने ऑलरेडी स्कैन भेजा है आपको. ये डायग्राम और ये फॉर्मूला के लिए 1 मार्क. ठीक है, फिर
ये वाले पूरे काम के लिए, यानी फाइंडिंग 1 पॉइंट, उसके लिए 2 मार्क। ठीक है। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट पहचानना है, सेकेंड पॉइंट इन इट, पॉइंट बियॉन्ड द चार्जेस, पॉइंट बियॉन्ड द चार्जेस, यानी दोनों पॉइंट्स से बाहर कोई एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो सेम फिगर ड्रॉ करेंगे, +1 नैनो कूलम एंड -4 नैनो कूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। ठीक है, और लास्ट टाइम पॉइंट अंदर लिए थे, अभी पॉइंट बाहर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, से पॉइंट सी इज ओवर हियर, डन। लेट अस से दैट पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम 1 नैनो कूलम इट इज एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, चाहे तो y भी ले सकते हो, x एक्सेस में होता है उसलिए x ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर, फ्रॉम 1 नैनो कूलम टू c द डिस्टेंस इज x, सो फ्रॉम 1 नैनो कूलम टू -4 नैनो कूलम द डिस्टेंस इज 1 + x। ठीक है, बस फर्क इतना आ रहा है, लास्ट टाइम 1 - x एंड 1 - x और x आया था, इस बार 1 + x और x आएगा। ठीक है, तो नाउ अगेन समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज 0, v1 + v2 = 0। ठीक है, पहले चार्ज के लिए 9 × 10⁹, फॉर्मूला आप लिख लेना 1/4πε0 वाला, 9 × 10⁹ इंटू फर्स्ट वन इज 1 × 10⁻⁹, फर्स्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज x। ठीक है, और माइनस दूसरी चीज़ लिखते हैं, उसके बाद उधर शिफ्ट करते हैं, वो शिफ्टिंग आप करोगे। सेकेंड चार्ज 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁹। आप पूछ रहे होंगे y +4 you have written sir, because this side if we write it is -4, yeah, but the other side I am already shifting। किया क्या है मैंने यहाँ पर, v1 + v2 = 0 था, v1 + v2 is -v2 एक्चुअली, तो v1 = v2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो एग्जाम में समेशन v के बाद डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर 1 + x आएगा, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, नैनो एंड नैनो। ठीक है, 1 × 1 + x इज 1 + x, इधर तरफ 4x। ठीक है, 1 = 4x - x is 3x, x = 1/3, x = 1/3, 1/3 मतलब 0.33 आएगा, 0.33 मीटर फ्रॉम 1 नैनो कूलम। ठीक है, फ्रॉम 1 नैनो कूलम, दोनों के लिए फ्रॉम लिख लिया है। फ्रॉम 1 नैनो कूलम यहाँ पर लिखना इन बिटवीन द चार्जेस, इन बिटवीन द चार्जेस, यहाँ पर बियॉन्ड द चार्जेस, बियॉन्ड द चार्जेस, इस तरीके से आप लिख लोगे। ये आपका 5 मार्क क्वेश्चन है आपके मार्च 2015 वाले पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट आपका था, एक और क्वेश्चन डिक्टेट किया था मैंने इन द लास्ट क्लास, दैट वाज जुलाई 2015, जुलाई 2015। I'll just erase this board. Give me 2 minutes. Where's the water? चलो ठीक है, this has been erased properly. Done. So let's focus the camera first. Is it focusing well? All right. Yes. So क्या था, जुलाई 2015 का, ABCD is a square of side 2 मीटर। ठीक है, ABCD is a square of side, ABCD is a square of side 2 मीटर। ठीक है, ABCD is a square of side 2 मीटर। दो जगह इसलिए लिख रहा हूँ बताने के लिए कि रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है।
Then charges of 5 nano, plus 10 nano and minus 5 nano are placed at corners A, B, C respectively. तो ये आपका ये B, C, D, ठीक है. चार्जेस 5 नैनो, यहाँ पर 5 नैनो कुलम, फिर प्लस 10 नैनो कुलम, फिर माइनस 5 नैनो कुलम, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ABC रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग what is the work done in transferring a charge of 5 microcoulomb. ये 5 microcoulomb एक्स्ट्रा चार्ज है, Q डैश बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, 5 microcoulomb बाहर वाला चार्ज. what is the work done in transferring a charge of 5 microcoulomb from D to the point of intersection. ठीक है, from D to the point of intersection let us call it O. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज योर पॉइंट O. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना है. आई होप इट इज़ विजिबल. ऑल राइट, तो नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इसको. वर्क डन जो है, वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम D to O, D to O है, तो वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट D. क्योंकि D से O को जा रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट D मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. dW इक्वल्स VdQ फॉर्मूला से आ रहा है. ठीक है, dW इक्वल्स VdQ से या फिर dV टाइम्स Q से. चेंज इन पोटेंशियल क्या है, पॉइंट O और D के बीच में है, यानी D से चार्ज को हटा रहे हैं O तक, तो VO माइनस VD मल्टीप्लाइड बाय Q डैश. ये आपका मेन फॉर्मूला है. ठीक है, और ये चीज़ में अब देखोगे, VO मुझे नहीं मालूम, VD भी नहीं मालूम, Q डैश कितना है 5 माइक्रो. ठीक है, तो ये आपको पहचानना है VO और VD. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. VO है एंड VD है, इन दोनों को पहचानना है. तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल जब कॉन्सेप्ट आ जाता है, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R. अब देखो, सबसे पहले मैं पोटेंशियल एट O पहचानूंगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एट वो चाहिए. पोटेंशियल एट द सेंटर, अच्छा, सेंटर के लिए डिस्टेंस डालना पड़ता है. देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ जोड़ के लिख लेंगे. ठीक है, Q1 बाय डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज OA, प्लस Q2 डिस्टेंस इज OB, प्लस Q3 डिस्टेंस इज OC. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. पोटेंशियल में एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लिख सकते. ठीक है, पोटेंशियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/OA प्लस Q2/OB प्लस Q3/OC. ठीक है, अब OA, OB एंड OC, ये देखो डायगोनल कुछ ऐसा है. ठीक है, O यहाँ पर है, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है. पूरा डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डायगोनल होगा साइड √2 यानी 2√2. ठीक है, उसका हाफ निकालना है OA के लिए, हाफ, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फिर √2 आएगा. ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व करोगे. Q1 की जगह पर 5 नैनो लिखोगे, OA की जगह पर √2 लिखोगे, Q2 की जगह 10 नैनो लिखोगे, OB की जगह पर फिर ऐसा करोगे, वो भी सेम है, √2 आएगा आंसर यहाँ पे, प्लस Q3 -5 है तो -5 × 10⁻⁹. OC की जगह पर फिर से √2 लिखोगे. ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन आपको लोग खुद करोगे. ठीक है, तो आंसर आपको VO का आएगा 63.64 वोल्ट्स. 63.64 वोल्ट्स, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे. ठीक है, मी सब्स्टिट्यूटिंग दैट अगेन, Q1 Q2 Q3 की जगह वैल्यूज़ लिखना है, OA OB OC की जगह सब जगह √2 लिखना है. ठीक है, डन. तो 63.64 वोल्ट्स आना चाहिए आंसर. डन. नेक्स्ट VO हो गया. अभी VD निकालेंगे. VD इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से Q1/VD है, पोटेंशियल एट D पॉइंट है, यानी डिस्टेंस विल बी AD फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज. देन Q2/BD, देन Q3/CD.
ठीक है। तो 1/4πε0 9 × 10⁻9 हो जाएगा, वो आप लोग लिखोगे। Q1 की जगह पर आएगा 5 नैनो 5 × 10⁻⁹, ठीक है। Q2 की जगह पर आएगा 10 नैनो 10 × 10⁻⁹ एंड 5 × 10⁻⁻⁵। अब डिस्टेंसेस लिखना है, उसके लिए ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। AD कितना है, A to D 2 है। BD कितना है, BD देखो पूरा डायगोनल है, पूरा डायगोनल का वैल्यू 2√2 है, ठीक है। तीसरा जो है CD है, CD फिर से 2 है, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये आएगा, यहाँ पर सारे के सारे √2 आएंगे, यहाँ पर 2 और बीच में 2√2 आएगा, ठीक है। अब फिर आप ये VD को सॉल्व करोगे, फाइंड आउट करोगे आंसर अपने आप, ठीक है। वैल्यू आनी चाहिए 31.82, ठीक है, 31.82, डन। अच्छा, जो स्कैन मैंने भेजा था उसमें थोड़ा मैंने स्क्रैच किया है, 22 सेंटीमीटर को सर्कल करके 2 मीटर लिखा है, और VO और VD में 10⁻2 कैंसिल किया है। वो इसलिए किया है कि मैंने समझा था कि 2 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया था, इसलिए उसको फिर से मार्क करके लिखा हूँ। A to B डिस्टेंस इज 2 मीटर यहाँ पे, और VO और VD में इंटू 10⁻2 था, उसको कैंसिल कर दिया है। ये मत समझना कि कहाँ से कैंसिल किया है, वो मेरा मिस्टेक था, राइटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो VO आया 63.64, VD आ गया 31.82, ठीक है। अब आखिरी स्टेप, इन दोनों को यहाँ पर डाल दोगे, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, VO कितना है 63.64 माइनस VD 31.82 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइक्रो बोला है, 5 × 10⁻⁶, तो आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो वो आएगा 159.1 जूल, 159.1 जूल। तो ये आप लोगों का सल्यूशन रहा इस पर्टिकुलर पेपर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जुलाई 2014 की तरफ, उसको डिक्टेट कर देता हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल सॉल्व दैट, ठीक है। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, आई विल ओनली पोस्ट द सोल्यूशन इफ पॉसिबल, बिकॉज सेम सम है, ठीक है, आप कर सकते हो ये चीज़। हाँ, जुलाई का पेपर है, जुलाई 2014, प्लीज़ मेक अ नोट। 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम, 2 charges 3 × 10⁻⁸ coulomb and -2 × 10⁻⁸ coulomb. I repeat, 3 × 10⁻⁸ coulomb and -2 × 10⁻⁸ coulomb are located 15 centimeters apart. Full stop. At what point on the line joining the two charges? Is the electric potential zero? Question mark. Take potential at infinity to be zero. तो पूरा क्वेश्चन ये है, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ coulomb and -2 × 10⁻⁸ coulomb are located 15 centimeter apart. Full stop. At what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? Question mark. Take potential at infinity to be zero. इसमें और हमारे किए हुए सम में, इससे पहला वाला सम जो किया उसमें फ़र्क ये है, वहाँ पर बोला था at what points, यानी 2 पॉइंट पहचानने थे। यहाँ पर उसने साफ बताया 1 पॉइंट बोलना है, at what point बोला है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पहचानना है। डन। तो ये प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, एट व्हाट पॉइंट बोला है, 5 मार्क क्वेश्चन है ये। सो सॉल्यूशन आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों कर लेना, ठीक है, इन बिटवीन भी करना और बियॉन्ड द पॉइंट भी करना, दोनों केसेस करके रखो, बाद में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है उसको, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जो अभी मैंने डिक्टेट किया, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम किया है उसी तरीके से आप लोग भी कर लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2016। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितना वेटेज है सेकंड चैप्टर से। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसका मतलब ये है यूजुअली सेकंड चैप्टर से प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन आ जाता है, और फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन एक नहीं आता, एक 5 मार्कर आ जाता है, और फिर E = dv/dx हमेशा पूछ लेता है, तो 8 मार्क डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, E = dv/dx सेकंड चैप्टर का डेरिवेशन पूछता है, फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन जो स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और बाकी जो किया था एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, तो दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं
पहले चैप्टर से डेरिवेशन हो 5 मार्क का तो दूसरे चैप्टर से 5 मार्क का प्रॉब्लम होगा, पहले चैप्टर से प्रॉब्लम होगा तो सेकंड चैप्टर से डेरिवेशन होगा, ठीक है। 3 मार्कर में E इक्वल्स dv/dx पूछता है कभी कभार। कमिंग बैक टू जुलाई 2016, चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, चार्जेस 2 माइक्रो, 4 माइक्रो एंड 6 माइक्रो are placed at 3 corners A, B and C respectively, are placed at 3 corners A, B and C respectively of a square ABCD of side x meter, of side x meter, of side x meter, full stop. Find what charge must be placed at the fourth corner, find what charge must be placed at the fourth corner so that the total potential at the center of the square, so that the total potential at the center of the square is 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम दे दिया गया है, ठीक है। 3 जगह पर चार्जेस दे दिए गए, चौथे पॉइंट पर चार्ज नहीं दिया गया और बताया गया कि सेंटर पे पोटेंशियल 0 होने के लिए चौथे पॉइंट पर क्या चार्ज होना चाहिए। तो इसके लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, चारों चार्जेस लिखने पड़ेंगे, जो अननोन है उसको Q4/OD डालना पड़ेगा, ठीक है। और इधर तरफ VO की जगह पर उसने कह दिया है कि सेंटर में पोटेंशियल 0 है, तो 0 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो वो वाला चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर वन मोर, हाँ, जुलाई 2018 पेपर, जुलाई 2018, where is it, हाँ, जुलाई 2018 पेपर, please make a note, this is also very important question। The plates of a parallel plate capacitor have an area of, the plates of a parallel plate capacitor have an area of 100 centimeter square, have an area of 100 centimeter square each and are separated by 3 meters. The plates of a parallel plate capacitor have an area of 100 centimeter square each and are separated by 3 meters. Full stop. The capacitor is charged by connecting it to a 400 supply. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. Connecting it to a 400 volt supply. Full stop. First point, first thing to calculate A. That is, calculate the electrostatic energy stored in the capacitor. Calculate the electrostatic energy stored in the capacitor. Next, B. If a dielectric of dielectric constant, if a dielectric of dielectric constant 2.5, if a dielectric of dielectric constant 2.5 is introduced between the plates of the capacitor, is introduced between the plates of the capacitor, comma, then find the electrostatic energy stored, then find the electrostatic energy stored and also change in energy stored, also change in energy stored। क्या क्या यूज होगा यहाँ पे, एनर्जी की बात हो रही है, U इक्वल्स हाफ CV² यूज होगा, कैपेसिटर एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल प्लेट के लिए C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A/D यूज होगा, U इक्वल्स हाफ CV² यूज होगा, ये दोनों यूज करेंगे। और फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह K भी डाल देना है, तो आपको तीसरा पार्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद दोनों एनर्जीज का डिफरेंस है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। मार्च 2019 पेपर, चारों सम्स डिक्टेट कर दे रहा हूँ, एक साथ अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जुलाई 2019 में भी एक सम है और उसका पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। किसी के पास जुलाई 2019 पेपर मिल रहा है तो मुझे फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, ताकि उसका क्वेश्चन मैं बोल सकूं। हाँ, तो ये हो गया आपका एक और। चलो, मार्च 2019 का क्वेश्चन लिख लो। इन अ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन अ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, radius of each plate is 5 centimeter, radius of each plate is 5 centimeter and they are separated by a distance of 2 mm, and they are separated by a distance of 2 mm, full stop. Calculate the capacitance and the energy stored, calculate the capacitance and the energy stored when it is charged by connecting the battery of, when it is charged by connecting the battery of 200 volts, 200 volts। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सम है,
C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर, EU इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर, दो रिलेशन से ये वाला सम आ जाता है, ठीक है। अब बाकी रह गया जुलाई 2009 पेपर, ठीक है, और मार्च 2020 पेपर और सप्लीमेंट्री ऑफ 2020, 3 पेपर बाकी रह गए हैं। अब इन 3 पेपर को कोई बंदा अगर थोड़ा इंटरनेट से निकाल के मुझे फॉरवर्ड कर देगा तो आई कैन डू दो सम्स, ठीक है। या फिर जब हम मिलेंगे रेगुलर क्लास में, वहाँ पर वी कैन कोप अप, ठीक है। तो जुलाई 15 हो चुका है, उसके बाद अराउंड 3 या 4 प्रॉब्लम्स मैंने डिक्टेट किए हैं। आप लोगों को करना ये है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसका सल्यूशन मैं भेजूँगा, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है वीडियो लेक्चर उसका फिर उसके फ़ौरन बाद जैसे इसका किया था वैसे ही डाल के दे दूँगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।